آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 14 نومبر 2025 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ میں جنگ بندی کے سائے میں حماس چپ چاپ دوبارہ بنا رہا پکڑ۔ اسرائیلی روک ٹوک ہوئی ناکام، فلسطینی پھر مسجد اقصی میں جمعے کی نماز کے لیے پہنچے۔ امریکہ کا UN پر دباؤ، ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کو منظور کریں ورنہ فلسطینی چکائیں گے قیمت۔ ہرمز میں ہڑکمپ، ایران نے انٹرنیشنل آئل ٹینکر کیا ضبط۔ IAEA کی نئی رپورٹ، ایران کی نیوکلیئر فائل اب سیدھا NPT کے ترازو پر۔ سوڈان پر یونائٹڈ نیشنز کا سخت موڈ، دارفور کے لیے فوراً جانچ ٹیم بھیجنے کا پلان۔ اور بنگلہ دیش میں دھر پکڑ اور آگزنی، شیخ حسینہ کیس سے پہلے ملک میں بڑی ٹینشن۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو، دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ غزہ کا پوسٹ سیز فائر سین کیسا ہے؟ سب پوچھتے ہیں تو کچھ ایسا ہے کہ ایک طرف امریکہ کا فیوچر پلان ہے، دوسری طرف حماس اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے۔ جی رپورٹ آئی ہے۔ غزہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد جہاں امریکہ غزہ کے مستقبل کا روڈ میپ تیار کر رہا ہے، وہیں حماس بھی چپ چاپ علاقے پر اپنی پکڑ ٹائٹ کر رہا ہے، کبھی مرغی کی قیمتیں کنٹرول کر کے اور کبھی سگریٹس اور فیول پر فیس لگا کر، لیکن ایک نظام قائم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹتے ہی حماس نے کئی علاقوں میں پھر سے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سنبھال لیا۔ دوسری طرف ورلڈ پاورز یہ مانگ پیش کر رہی ہیں کہ حماس نہ صرف ہتھیار چھوڑے بلکہ گورننس سے بھی الگ ہو جائے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ حماس کی جگہ آخر کون لے گا؟ تو جان لیں کہ اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ غزہ کے کئی شہریوں نے بتایا کہ علاقے میں حماس کی موجودگی اور کنٹرول اور بھی زیادہ سخت محسوس ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق علاقے میں آنے والی ہر شے پر نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ کچھ امپورٹس جیسے فیول اور سگریٹس پر فیس وصول کی جا رہی ہے، اور جو دکاندار زیادہ ریٹ وصول رہے ہیں، مطلب دھرم کے دوگنے پیسے وصول رہے ہیں عام لوگوں سے، ان پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے۔ یعنی حماس ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ حماس نے ان سارے دعووں کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ کیوں؟ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کو سپورٹ کرے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ریزولوشن پاس نہ ہوا تو فلسطین کے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا، انہیں بہت بری قیمت چکانی پڑے گی اس کی۔ اس کے لیے اس نازک موقع پر رکاوٹیں کھڑی کرنا درست نہیں ہے، امریکہ نے UNSC سے کہا ہے، اور کونسل کا ایک ہو کر آگے کھڑا ہونا اور آگے بڑھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی امریکہ نے کہا ہے۔ یعنی UNSC میں جو باقی ملک ہیں، فرانس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اس سب سے یہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ بھیا ویٹو مت کرنا، یہ غزہ کے حق کے لیے کیا ہے۔ وہیں کچھ ممبر ملکوں نے اس ڈرافٹ پر اہم سوال اٹھائے ہیں جو بہت لازم ہے، جیسے سیکیورٹی کونسل کی نگرانی کا طریقہ کیا ہوگا، فلسطینی اتھارٹی کا فیوچر رول کیا رہے گا، اور ISF کی پاور کی مکمل وضاحت کیا ہوگی وغیرہ۔ یہ سارے سوال امریکہ کے جواب کے منتظر ہیں۔ حالانکہ امریکہ اسرائیل کو بہت جلدی جواب دے دیتا ہے، لیکن UNSC میں کب دے گا یہ ہم دیکھیں گے۔ اب فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے ایک اچھی خبر سن لیجئے۔ UN سیکیورٹی کونسل، جسے UNSC کہتے ہیں، اس UNSC میں غزہ کے لیے پروپوز انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس پر جو تازہ ڈرافٹ پیش ہوا ہے، اس میں پہلی مرتبہ فلسطینی ریاست کا کھلا اور سیدھا ذکر شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب الگ ریاست کا حوالہ کسی ڈرافٹ کے اصل ٹیکسٹ میں درج ہوا ہو۔ اس نئے ڈرافٹ کے مطابق جب فلسطینی اتھارٹی کا ریفارم پروگرام پوری طرح نافذ ہو جائے اور غزہ کی تعمیر نو یعنی کہ ریکنسٹرکشن میں صاف ڈیولپمنٹ حاصل ہو جائے تو فلسطینیوں کی خود مختاری اور اسٹیٹ ہوڈ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلی بار کسی آفیشیل UN ڈرافٹ میں یہ اشارہ صاف لکھا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ غزہ میں اسٹیبل ماحول اور فلسطینی اتھارٹی کی مضبوط سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن آخرکار فلسطینی ریاست کی طرف راستہ کھول سکتی ہے۔ یہ بڑا قدم ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کے مسلسل چھاپوں کے دوران نابلس میں فلسطینی ریزسٹنس کے لڑاکوں نے اسرائیلی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک دھماکہ کیا،
जुमेरात की रात और जुमे की सुबह तक जारी रही इन कार्रवाइयों का पूरे इलाके में सख्त रिएक्शन सामने आया, जहां प्रोटेस्ट, झड़पें और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। इसी दौरान फ़लस्तीनियों और सेटलर्स के दरमियान झड़पें भी हुई, जब सेटलर्स ने नॉर्दर्न जॉर्डन वैली के इलाके में धावा बोलने की कोशिश की। सेटलर्स हर रोज़ फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, ख़ास तौर से काश्तकारों पर, जिन्हें वो जैतून की उनकी फसल तोड़ने या फल तोड़ने नहीं जाने देते। रमल्ला में भी इस्राएली फोर्स ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार किया। अलबेरा शहर में इस्राएली छापे के दौरान शदीद झड़पें हुई, जहां इस्राएली फौजियों ने फ़लस्तीनी नौजवान और प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। इसराइल की सख्त पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज अदा करने में कामयाब रहे। इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, मगर अभी तक इनके ईमान पर आँच नहीं आई है। इस मुश्किल और आजमाइश के वक्त में फ़लस्तीनियों का अल्लाह से, अपने माबूद से रिश्ता और मजबूत हुआ है। गजा के जनूबी शहर खान यूनिस के अल नस्र अस्पताल ने बताया है कि उसे आज इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत 15 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं, जिसके बाद अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 330 हो गई है। याद रहे कि जंगबंदी के तहत तय हुआ था कि हर एक इसराइली की लाश के बदले इसराइल 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करेगा। आखिरी 4 होस्टेजेस की जो बॉडीज़ बची थीं गजा में, उनमें से एक की बॉडी आज पहुंची इसराइल, तभी ये 15 बॉडीज उधर से आई हैं। इसराइल का इल्ज़ाम है कि हमास जानबूझकर इसराइलियों की लाशें लौटाने में देर कर रहा है, जबकि हमास का कहना है कि देरी की वजह यह है कि 2 साल की जंग के बाद बहुत सी बॉडीज़ मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिन्हें निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स और मशीनों का टोटा है, और वो मशीनें आपने ही तबाह की थी। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जानबूझकर मदद पहुंचाने में रुकावटें डाल रहा है और गजा तक मदद को नहीं पहुंचने दिया जा रहा। इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं। UNRWA ने मदद देने वाले ममालिक से फौरी फाइनेंशियल हेल्प की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से फंडिंग बंद होने के बाद गजा में काम जारी रखने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि उसने गजा में अमन मिशन के लिए 20,000 फौजियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे दी है। ये फौजी गजा जाएंगे। ये ऐलान इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जकार्ता में किया, लेकिन इंडोनेशिया ने वाज़ेह किया कि अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि उसके फौजियों को कब भेजा जाएगा गजा और उन्हें क्या पावर दी जाएगी। इससे जाहिर होता है कि गजा में किसी भी इंटरनेशनल फोर्स की मौजूदगी का फैसला अब भी क्लियर नहीं है। खबर ईरान की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हलचल मचा दी है। एक इंटरनेशनल ऑयल टैंकर जिसका नाम तलारा है, उसको रोककर ईरान अपने इलाके की तरफ खींच कर ले गया है। इस पर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी पीछे बनाया, आपको तफसील जाननी तो वहाँ मिल जाएगी। ईरानी फोर्सेस ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगे एक ऑयल टैंकर तलारा को इंटरसेप्ट करके ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स की तरफ मोड़ दिया। ये कार्रवाई कई महीने बाद इस अहम इंटरनेशनल रूट में होने वाला पहला बड़ा इंसिडेंट है। अमरीकी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जहाज़ UAE के अजमान से सिंगापुर जा रहा था, तभी ईरानी बोट्स ने इसे घेर लिया और इसके बाद ये उसे ईरान के पानियों में ले गए। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इससे टेंशन बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वही इलाका है जहाँ से दुनिया भर का 20% ऑयल रोज़ गुजरता है, 20%, जिससे कई मुल्क चलते हैं और ये अरब ममालिक से तेल लेकर आ रहे होते हैं, UAE से, कतार से। तो ये अगर इलाका ठप पड़ गया तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्यों किया ईरान ने ऐसा, मैं फिर बता दूं, अभी तक क्लियर नहीं है, होगा तो बताऊंगा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जो वियना में होने वाले गवर्नर्स के इजलास से पहले पेश की जाएगी। रिपोर्ट में इस बात पर तवज्जो दी गई है कि ईरान के पास यूरेनियम के कितने ज़खायर हैं, कितने ज़ख़ीरे हैं, मगर इस रिपोर्ट में ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमलों का कोई जिक्र नहीं है। ये इजलास इस लिहाज से अहम है कि JCPOA के
बाज़ाब्ता खात्मे के बाद पहली मर्तबा ईरान का न्यूक्लियर मामला अब सिर्फ NPT सेफगार्ड्स के मुआहदे के तहत देखा जाएगा, ना कि 2015 के सस्पेंडेड न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत। ईरान अब खुला सांड है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। तेहरान में जुमे के खुतबे के दौरान आयतुल्लाह खातमी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह कबूल किया है कि ईरान पर इसराइली हमले की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री से मुतालबा किया कि इस एतराफ़ के बाद, इस कबूलनामे के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुकदमा दायर किया जाए। आयतुल्लाह खातमी ने कहा कि अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इसलिए अमेरिका के इस हीनियस एक्ट के ख़िलाफ़ आलमी इदारों में शिकायत दर्ज करवाई जाए। यूनाइटेड नेशंस की टॉप ह्यूमन राइट बॉडीज़ ने आज एक स्पेशल सेशन बुलाया। इस सेशन में सूडान के दारफुर शहर में आम शहरियों पर RSF के जुल्म के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाने पर गौर किया गया। इस रेजोल्यूशन का मकसद माहिरीन की एक टीम को जांच के लिए फ़ौरन सूडान भेजना है। काउंसिल के हेड वॉल्कर टर्क ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अल्फाशेर शहर में जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, वो पहले से नज़र आ रहे थे और वो रोके जा सकते थे, लेकिन रोके नहीं गए। ये इंतहाई संगीन जुर्म है। याद रहे कि सूडानी फौज और RSF जो कभी अलाइज थे, साथी थे, 2023 में एक दूसरे के खिलाफ जंग में उतर आए और तभी से ये खाना जंगी जारी है। बांग्लादेश में हालात फिर से टेंस हो गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को अहम अदालती फैसले से पहले वायलेंस की लहर देखने को मिल रही है। जगह जगह धमाके हुए हैं और आगजनी की गई है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर पड़ा है। दर्जनों बसों को आग लगा दी गई। स्कूलों ने क्लासें ऑनलाइन कर दी। हालात को देखते हुए पूरे मुल्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदियां लगाई गईं। पुलिस ने आवामी लीग के कई मेंबरों को तोड़फोड़ और धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।